that, the iconic Red Fort right behind me. You see that? You've guessed it right. We are in Delhi 6. The Chandni Chowk constituency, which is the smallest in the country, is seeing an interesting fight between a veteran Congress leader and a popular BJP leader, a trader leader from this area. What makes Delhi 6 most interesting is that every house here, every shop here, every voter has his own story, his own set of expectations. So what really makes Delhi 6 so special? Let's find out. Right at the entrance of the bazaar is the Central Baptist Church. Not very far away, in fact right ahead, is a Gurdwara, and right next to it is a masjid. In fact, the physical location of these places of worship sums up what Purani Delhi is about. As far as the communities here, the voters here are concerned, it's made up of old Muslim families, rich upper caste Hindus, SCs, STs, and a considerable chunk of slum dwellers. कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। The bylanes of Chandni Chowk are dotted with the flags of the Aam Aadmi Party and the Congress. You can see them together, obviously, because the Congress and the Aam Aadmi Party, in an unprecedented kind of an alliance, are fighting the elections together. JP Agarwal is the candidate of the Congress party from here. As part of the negotiations, this is the constituency from where veteran Congress leader Agarwal is fighting. It falls in the kitty of the Congress party. Congress's Jai Prakash Agarwal, in the middle of his campaign, praying at a temple here in the heart of Chandni Chowk. He's the veteran Congress leader and not new to this constituency. He's won elections from here in the past as well. And the Congress and the Aam Aadmi Party combined has put their faith on the veteran Congress leader to snatch back this seat, this Lok Sabha seat from the Bharatiya Janata Party that has won it for 2 terms in a row. Locals here see this as his homecoming. कोई टक्कर है प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल का, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल भी तो पॉपुलर है। जेपी अग्रवाल आएगा। खुश हैं कि जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है? खुश इसलिए क्योंकि वो लोकल थे, यहाँ के काम करते थे यहाँ पे। अच्छा, कौन आएगा यहाँ से? जयप्रकाश अग्रवाल जी आ सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, अभी वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, क्या माहौल है आपकी चांदनी चौक? माहौल तो जी सब हाथ वाले का यहाँ पे ज्यादा जोर है। Agarwal also tells us about his rishta with Purani Delhi. How are the Congress workers, the cadre, responding to this joining hands of the Aam Aadmi Party and the Congress, given that you were woes just a few years ago? पहली बात तो ये मेरा जन्म यहीं इसी गली में हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ और ये हमारे परिवार का 20वां चुनाव है एक ही मकान से। और तीसरा, आपने देखा होगा लोगों में क्या भावना है। ये जब होता है जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं और उनके दुख सुख में काम आते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार की तानाशाह रवैया, नीतियां, फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचाना, उसके खिलाफ सब इकट्ठे हुए हैं इंडिया गठबंधन में, और उसमें आप पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में इकट्ठा है और मिलकर चुनाव लड़ने कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी आपके साथ एक रोड शो किया। बिल्कुल किया और उन्होंने अपील की कि आप जयप्रकाश अग्रवाल को 2 नंबर के बटन पे दबाकर हाथ के निशान पे वोट करें।
इस कंस्टिट्यूंसी में क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ पर भारी व्यापारी जो हैं, उनका पॉपुलेशन है, वो आपके मेन वोटर्स हैं, क्या है उनकी उम्मीदें आपसे? परेशानी ये है कि व्यापारियों को बहुत तंग किया पिछले 10 साल में। उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून लगा दिए और डर बैठा दिया कि जेल भेज देंगे हम तुम्हें। जीएसटी लगा दी, उसमें 1000 अमेंडमेंट कर दिए। कई ऐसी आइटम थी जिसमें जीएसटी नहीं थी, उन पे जीएसटी लगा दी और डराते हैं उनको कि जेल दिखाते हैं उनको। उसके बाद एक और कानून बना दिया एमएसएमई कि आप इतने दिन में पेमेंट नहीं आया तो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। ये तो अकाउंटिंग सिस्टम है। मैं माल बनाता हूँ, मैं कितने दिन में उसको उधार देता हूँ, ये मेरी मर्जी है ना दुकानदार की। इसमें सरकार कहाँ गई? वो उसको तंग करा। उसके बाद चांदनी चौक में लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी। यहाँ हज़ारों दुकानें हैं, सैकड़ों आइटम है होलसेल मार्केट के यहाँ पे। शायद ही कोई आइटम ऐसा हो जो यहाँ नहीं बिकता हो। उनको तंग कर रहे हैं। उनके दुकानों में कोई ना जाए इसलिए मॉल बना दी कि लोग मॉल में जाए, वहीं से बाहर चले जाएं। तो व्यापारियों को इन्होंने जानबूझ के तंग किया है, जानबूझ के। और किसी ने उनकी मदद नहीं की बीजेपी में, किसी ने मदद नहीं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी हाई है। कई सारे के बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जो कांग्रेस है वो कंट्री का जो वेल्थ है, जो धन दौलत है, वो माइनॉरिटीज़ के हवाले कर देगी, रिजर्वेशन दे देगी। माइनॉरिटीज़ का कैसा एटीट्यूड रहा है आपकी तरफ, और ये सारे बयान आप क्या गेज कर रहे हैं? मूड कैसा है माइनॉरिटीज़ का? प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी जब बोलता है तो सारी दुनिया उससे सुनती है। वो ये माना जाता है ये इस देश की पॉलिसी है, क्योंकि उस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। क्या ये अच्छी चीज़ें हैं? क्या नफरत पैदा करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, उनको तंग करना, माइनॉरिटी को तंग करके मेजॉरिटी की तरफ देखना सिर्फ, और उनको भड़काना, क्या ये प्रधानमंत्री के स्तर की बातें? प्रधानमंत्री होता है वो कहता है नहीं, मेरे राज में सब सुरक्षित रहें, सबको रोटी और रोजगार मिले। ये प्रधानमंत्री का काम होता है। प्रवीण खंडेलवाल जो है आपके जो ओपोनेंट है इस सीट से, उनका कैंडिडेचर आप कैसे देखते हैं? वो भी काफ़ी पॉपुलर है, ट्रेडर्स कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, कैट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात ये, आप किसी अपनी प्राइवेट सोसाइटी बना लो, उसके प्रेसिडेंट बन जाओ, तो मैं भी बन जाऊंगा 10 जगह। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 10 साल में मैंने इतने मुद्दे आपको व्यापारियों के गिनवाए, एक पे भी वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए? एक पे भी उन्होंने व्यापारियों के साथ मिलकर मांग करी कि नहीं, मैं इसका ज़बरदस्त विरोध करता हूँ, जीएसटी से व्यापारी तंग है, मैं इसका विरोध करता हूँ, एमएसएमई से कानून से व्यापारी तंग है, मैं उसका विरोध करता हूँ, आपने लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इस मॉल का विरोध करता हूँ, यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जो लोग यहाँ माल खरीदने आते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। अब मुझे बताओ, ऐसे मैं हूँ, इससे क्या मतलब होता है? सवाल ये है, बीजेपी गुनहगार है। 10 साल में उन्होंने चांदनी चौक पार्लियामेंट के बारे में एक सवाल पार्लियामेंट में नहीं उठाया और किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया, ना उनकी किसी मांग को पूरा किया। And just like the diversity in the voter population here, there are just so many people with so many aspirations. Is the diversity in this particular chart, which is the Padam chart corner, because 5 different types of water pani is given with their pani puri. So let's try out how their pani puri really is. Like I said, 5 different kinds of pani as far as pani puri is concerned. जो हैं यहाँ के, वो यहीं की पैदाइश हैं, जयप्रकाश जी, बाजू वाली गली में रहते हैं। पहले भी बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाता है। यहाँ पर मैम विकास तो हो ही रहा है। एक्चुअली बीजेपी की सरकार आएगी तो और ज़्यादा विकास होगा। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। बहुत बढ़िया है, बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी, आनी भी चाहिए जी। यहाँ तो बीजेपी आएगा। It is a battle of a first-timer and a veteran political leader in Delhi's Chandni Chowk. 64-year-old Praveen Khandelwal, trade leader representing businessmen in Delhi, is the BJP candidate from Purani Delhi. His claim to fame was protests against Chinese goods across India after the India-China skirmish in the Galwan River Valley in 2020.
In March 2021, Khandelwal was back in headlines for a pan-India protest against one of the richest persons in the world, Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon. The reason for the protest was Amazon bypassing Indian laws that restrict e-commerce sites from selling their own goods. And small and big domestic businesses are the voters here. We are in Delhi's Sadar Bazaar, the largest wholesale market in the country. Here the voter is the trader, the Vyapari. The issues concerning the Vyapari, his business, his trade is what really matters to them. Let's try and talk to them to get a sense of how they feel about these elections, which are the most crucial issues for them this time around. व्यापारियों में जो कमी आई है काफ़ी 2-3 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है, तो व्यापारी तो परेशान है ना। जीएसटी हुआ, कुछ भी होता तो है ही किसी ना किसी वजह से ही। जीएसटी आया तो उससे और भी ज़्यादा कमजोरी हो गई। जब से मोदी आया है उन्हें सारा नाश कर दिया, कारोबार नाश कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया। लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जीएसटी की वजह से हमारा समझिए 70% काम खत्म हो चुका है। हाँ, टैक्स बहुत देना पड़ता है। हमारी ये समझ लिए 70% पार्टियाँ माल लेना बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि हमारे पास बिल होता नहीं है। हम तो इधर उधर से क्या नाम है दिल्ली के लोकल से माल खरीद के लेकर आते हैं। अब हम किसी से 4 टैल ले रहे हैं, 2 टैल ले रहे हैं, 10 टैल ले रहे हैं, हर आदमी हमें बिल थोड़ी देगा। हर आदमी कारोबारी परेशान है। क्या दिक्कतें हैं व्यापारियों को? ये बस ये महंगाई की दिक्कत है, टैक्स की इसकी दिक्कत है, समझे। जो ऊपर से ये जीएसटी वगैरह लगा दिया था, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जीएसटी का तो थोड़ा मसला ये 5% के कपड़े के ऊपर तो, लेकिन और चीज़ों पे ज़्यादा है थोड़ा। उसकी वजह से जैसे क्या होता है कि हम सब और चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, औरों का काम चलेगा तो हमारा भी चलेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों पे भी काम नहीं है। चांदनी चौक में एक ही नाम, जय श्री राम. This is a war cry of the Bharatiya Janata Party in Delhi's Chandni Chowk, where I am right now. BJP's Praveen Khandelwal is seeking votes in the name of Lord Ram, also talking about the kind of work that has been done by the Prime Minister and that this work must continue. Traders के जो issues है, मुझे लगता है कि वो on top of your agenda हैं. कैसे सॉल्व करेंगे जो सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? देखिए, खाली ट्रेडर्स की बात ना कहें, मैं जब चांदनी चौक लड़ने आया हूँ तो जितने भी मेरे इलेक्टोरेट, कोई भी वर्टिकल है, कोई भी वर्ग है, और व्यापारियों का तो खास तौर पे इसलिए है कि पिछले 35 सालों में मैंने व्यापारियों के लिए काम किया। मेरी कोर कॉम्पिटेंस का एरिया तो वो है, लेकिन मैं बाकी क्षेत्रों में भी अपनी कोर कॉम्पिटेंस का एरिया बनाना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने ये कहा है कि चांदनी चौक की ऐतिहासिकता, चांदनी चौक की संस्कृति और चांदनी चौक की सभ्यता, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को हम कैसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बात मैंने लगातार पिछले 80-85 दिनों से मैं यहाँ लगातार कहता आ रहा हूँ। और यहाँ के लोगों में जिस प्रकार का उत्साह और समर्थन है, उससे मुझे ये बात बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के कार्यकाल का जो विज़न है, वो लोगों के मन में बस गया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से जेपी अग्रवाल उतरे हैं मैदान में, कैसे देखते हैं आप उनके कैंडिडेचर को? वो पुराने रहे हैं, वहाँ से वहीं के हैं, पहले भी वहाँ से एमपी बन चुके हैं। देखिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी पुराने हैं और हमारे बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर चांदनी चौक की बात करें तो 35 साल पहले वो चांदनी चौक छोड़ गए। 25 साल से वो चांदनी चौक की किसी भी गतिविधि में नहीं है, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिए। किसी की भी समस्या हो तो जयप्रकाश जी कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। तो इस कारण से केवल पुराने थे और आज उनको उसका लाभ मिलेगा, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है। लगातार जिन लोगों ने काम किया, जो लोगों के बीच में रहे, उन लोगों को निश्चित रूप से उनका दबदबा लोगों के बीच में ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं लागू करी, क्या किसी योजना में डिफरेंशिएट किया?
बिल्कुल नहीं किया। ये क्या बोलना उस- कि क्या- माइनॉरिटीज को दे क्या- दिया जाएगा संपत्ति, ऐसे तो कांग्रेस नहीं, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी, ऑन रिकॉर्ड है। 15 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा। SC/ST की भी बात हो रही थी सब ये तो कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि SC/ST का आरक्षण ही खत्म कर दो, तो मतलब देश में दलित का, वंचित का, शोषित का आरक्षण खत्म हो जाए, ये बात कांग्रेस चाहती है। और उसके बाद वो आरक्षण को खत्म करके वो किसी दूसरे व्यक्तियों को आरक्षण देना चाहते हैं। क्या लॉजिक है? Our final stop is at the ever beautiful, iconic Jama Masjid. That's where I am. This is Purani Delhi, and this brings out the beauty of old Delhi like no other place really does. From here, we'll talk to the people to get an idea about what do they think about these Lok Sabha elections. What are the issues that the people of Jamia Masjid are going to be voting on? From the dais, local Congress leaders drive home the point that BJP is mixing religion and politics. हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को मतलब लड़ा कर ये राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ना कांग्रेस आए, ना बीजेपी आए, ना आम आदमी आए, और कोई बढ़िया आदमी आ जाए हमारे साथ जो काम करे, इंसानों के लिए काम हो, जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए। वो जानवर के चक्कर में इंसान को मार रहा। पॉलिटिक्स अलग है, धर्म एक अपना एक ही है सब। कुछ है, ये देख रहे हो आप, पूरी दुकान पे ऐसे कोफ्ता पड़ा हुआ है, पूरे 2 महीने हो गए, काम ही नहीं है मार्केट में। हमारी भी बेरोजगारी चल रही है, काम धंधा है ही नहीं। What is clear is that when it comes to concerns of the common man, inflation and unemployment, religion may just not count. सस्ताई पे जी, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, सच चीज़ है, घर की ज़रूरत है, चीज़ है, तो महंगाई की चीज़ है सारी। और कांग्रेस आ जाए तो कुछ सस्ती हो जाए चीज़ें। आज भी सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ है, और कुछ 300-350 रुपये का सिलेंडर था, कहाँ पहुँच गया सिलेंडर। मुद्दा महंगाई है सब, क्योंकि सब पीस रहा है इसमें। हाँ, महंगाई का ही मुद्दा है। अमीर गरीब या आपका हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है मुद्दा, मेन ये है मुद्दा महंगाई। Politics of Purani Delhi is a heady mix of development and religion. While many people talk about the fact that religion matters, though religion and politics should not be mixed, most people talk about issues that concern the Aam Aadmi, which is unemployment and rising inflation. These are the problems they want their representative to deal with, is what they say. At least that is the sentiment on the ground. On behalf of the entire team of Election Express Delhi, I'm thanking you. Take care of yourself. Bye for now.